السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے تعلیم کے میدان میں ہم ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جائزہ امت مسلمہ کی تعلیمی سرگرمیوں کے پس منظر میں ہے۔ تعلیم بڑی اہم ہے اور تعلیم کے دونوں مقاصد بڑے اہم ہیں۔ تعلیم کے ذریعے انسان کی اپنی تربیت، اور اسی طرح تعلیم کے ذریعے انسان کا اپنا کیریئر، اپنا مستقبل، یعنی تعلیم کے ذریعے انسان چاہے ہنر حاصل کرے اور چاہے انسان تہذیب و اخلاق سیکھے، یہ دونوں بڑے اہم ہیں۔ امت مسلمہ نے تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو عموماً دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے، عملاً بانٹ رکھا ہے۔ نظریاتی طور پر امت مسلمہ میں تعلیم کی تقسیم اب بہت زیادہ نہیں رہ گئی۔ پچھلے کئی دہائیوں سے امت مسلمہ نے تعلیم کے میدان میں بہت کچھ پیش رفت کیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی پیش رفت اس نے ہمارے ملک کو بہت کچھ دیا ہے، ملک کی ترقی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ آج تعلیم کی تقسیم میں تو اتحاد کی طرف آ گئی ہے، اس کے تقسیم کو بہت زیادہ تسلیم نہیں کرتی، لیکن عملاً آج تعلیم ہمارے درمیان منقسم ہے۔ اس طرح منقسم ہے کہ تعلیم کا دو روٹ ہے۔ بالکل شروع سے تعلیم دو الگ مقاصد کے لیے، دو الگ راستوں سے جانے والا ایک منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ تعلیم روٹ دو ہوں یا چار ہوں، تعلیم کے مقاصد تک پہنچنے کے لیے راستے کئی ہوں، لیکن مقصد کی طرف جانے والا وہ وہاں تک پہنچ سکے، یہ تعلیم کی کامیابی ہے۔ اور تعلیمی سسٹم کی ناکامی یہ ہے کہ انسان تعلیم کے اس راستے سے چلے کہ آگے بڑھ کر کے اسے تعلیم کے مقصد کو حاصل کرنے میں دشواری پیش آئے، یہ تعلیم کی ناکامی۔ اس لیے ہمیں آج اس پر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ تعلیم کے جو روٹ ہیں دو، وہ دونوں آگے بڑھ کر کے تعلیم کے مقصد کو بھی بانٹ دیتے ہیں، جبکہ تعلیم کے مقصد کو بٹنا نہیں چاہیے، تعلیم کا مقصد متحدہ ہونا چاہیے۔ اس کو آپ دوسرے انداز میں بھی سمجھیں کہ انسان ایک منزل پہ کسی بھی سواری سے جا رہا ہے، لیکن پہنچ جائے منزل تک تو سواری اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر سواری کے بدل جانے سے منزل اس کی بدل جائے تو ایسی صورت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ تعلیم کے میدان میں بھی یہی آج ہے جسے امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا ایک روٹ ہے مدارس، مکاتب، جامعات، اسلامی ادارے، بڑے مدرسے، دارالعلوم۔ یہ تعلیم کا وہ روٹ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، سائنٹسٹ بننا چاہے، ریسرچ اسکالر بننا چاہے، تو اس کے لیے راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ بڑا محدود راستہ ہے، ناقابل ذکر ہے۔ بہت سارے ہمارے تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہر سال مدرسوں سے دو چار بچے نکل کر کسی طرح BOMS کر لیتے ہیں،
BA MA कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इस पर बड़े खुश होते हैं। हालांकि हकीकी मानों में अगर वो इस बात को महसूस करें और सही अंदाज में तज्जिया करें तो ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो बच्चे जो मदरसों से जा करके यूनिवर्सिटीज में अपना वक्त देते हैं, उनका वक्त कितना ज़ाय होता है और उन्हें अपने आप को किन रास्तों से, किन पेचीदा दुश्वार रास्तों से गुजारना पड़ता है और फिर उनके सामने नाकामी होती है। कामयाब तो चंद होते हैं, और वो भी कैसे कामयाब होते हैं, कितना कामयाब होते हैं, उस पर इंशाअल्लाह आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी मेरी गुफ्तगू जो है वो ये कि एक शख्स जो इन मदरसों में पढ़ने वाला है वो आज किसी मॉडर्न सब्जेक्ट में अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो उसके रास्ते बंद हो जाते। बिल्कुल इसी तरह अगर एक ने स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद उसने कॉलेज में पढ़ा है और वो चाहता है कि वो शरिया में स्पेशलाइजेशन हासिल करे, इल्मुल कुरान में खुद महारत हासिल करे, इल्मुल हदीस में महारत हासिल करे, तो उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े मौके हैं थोड़े मोड़े जिनका कोई असर नहीं है, जिनका कोई शुमार नहीं, उमूमी तौर पर उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्ते बंद होने की दो शक्लें हैं नाज़रीन इकराम, वो हमें सामने रखना चाहिए। एक तो इस एतबार से रास्ता बंद होता है कि उसने उन सारी चीजों को बचपन से बिल्कुल नहीं पढ़ा जो आगे चलकर उसे पढ़ाया जाएगा, इसलिए उसका रास्ता बंद हो जाता है। और दूसरा, अगर वो नए सिरे से पढ़ना चाहे तो उसको एक उम्र दरकार होती है। एक शख्स अगर उसने इंटर और ग्रेजुएशन करके मदारिस का रुख किया है तो फिर उसे मदरसों की 8 साल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कितना दुश्वार होगा उसके लिए कि जिसने 20 साल की उम्र तक स्कूल की तालीम हासिल की, अब अगर उसे इस आलिम बनना है तो फिर वो 8 साल लगाए, यानी 28 साल में जाकर के वो आलिम बने। कितना मुश्किल है, इसीलिए लोग नहीं आते इस राह। और ऐसे ही एक आलिम अगर वो उधर जाकर के किसी मॉडर्न सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहे तो उसे फिर नए सिरे से हाई स्कूल करना होगा, इंटर करना होगा, कंपटीशन में बैठना होगा, यानी कम से कम उसे 4-5 साल पीछे जाना होगा और ये उसके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हमने 2 रूट बनाए हैं और दोनों रूट तालीम के रूट हैं, दोनों रास्ते तालीम के रास्ते हैं और दोनों पढ़ने वाला इंसान उसके सामने एक मकसद है कि उसकी जिंदगी बन जाए, उसका कैरियर बन जाए, लेकिन आगे चल करके वो बढ़ जाता है और वो अपने मकासिद में मुत्तहिदा नहीं चल पाता है। ये है हमारे इस रूट की कमी जिसे हमें महसूस करना चाहिए। रूट अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हैं, रूट दोनों तालीम के हैं, दोनों के जरिए इंसान को तालीम याफ्ता बनाया जाता है, लेकिन दोनों रूट में आगे चल करके जो तखस्सुसात हैं वो एक दूसरे के लिए मसदूद हो जाते हैं और यही सबसे ज्यादा आज उम्मत मुस्लिमा की तालीम के मैदान में नाकामी की वजह। इसलिए हमें आज ये इस पर गौर करें और तैयार हो गौर करने के लिए कि हम तालीम के मकासिद को मुत्तहिदा कैसे बनाएं, चाहे वो मदरसे की लाइन से जाए और चाहे वो स्कूल की लाइन से जाए। अगर स्कूल की लाइन से जाने वाला इंटर करने के बाद शरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, दीन में तखस्सुस हासिल करना चाहता है, तो उसके मौके उसे हासिल और अच्छे से हासिल और उसका वक्त भी कम लगे। ऐसे ही अगर मदरसों से जाने वाला वो मॉडर्न सब्जेक्ट में डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, साइंसदान बनना चाहता है या किसी मॉडर्न सब्जेक्ट में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको मौके हासिल हों, चांसेस हों और उसका वक्त भी कम लगे। इसके लिए हमें आज समझना होगा तालीम के ग्रेड्स को। तालीम के 2 ग्रेड्स कॉमन है, जहां इंसान की उम्र, बच्चे की उम्र और उसके तालीम का मेयार दोनों यकसा बनाया जा सकता है। वो है प्राइमरी और मिडिल। प्राइमरी और मिडिल ये 2 ऐसे मरहले हैं जहां बच्चे की उम्र पहुंचते पहुंचते तकरीबन 12 साल होती है। 12 साल की उम्र में 11-12 साल की उम्र में बच्चा मिडिल तक पहुंचता है।
प्राइमरी के 5 साल, प्री प्राइमरी के 3 साल, 2 साल की उम्र में इंसान शुरू करता है या 3 साल की उम्र में शुरू करता है, तो 5 और 4 या 3, 8 या 9 साल, और मिडिल के 3 साल, यानी 11 या 12 साल। ये 11-12 साल की जो तालीम है इसे हमें कॉमन रखना पड़ेगा। कॉमन का मतलब मदरसे में पढ़ाएं या स्कूल में पढ़ाएं, हमें उसे ये रुख देना होगा कि ये दोनों पढ़ने वाले आगे चल करके मुत्तहिदा मकासिद के तहत तालीम के मैदान में बढ़ने की सलाहियत हासिल कर सकें। ये हमें पैदा करना है। यहीं से हमें अपने आप को चेंज करना होगा, यही बुनियादों में हमें आगे के मकसद को शामिल करना होगा। असल हुआ क्या है कि तालीम में हमने जो मकासद शामिल किए हैं उसकी बुनियादों में, प्राइमरी और मिडिल में, वो हमने महदूद तालीम के तसव्वुर को शामिल किया है। मदरसे में अगर हमने मकातिब में और इब्तिदाइया तालीम में, मुतवस्सिता की तालीम में अगर कुछ रखा है उसके सामने, तो सिर्फ और सिर्फ आलिम बनने का मकसद। इसी तरह स्कूल में अगर हमने प्राइमरी में और मिडिल में अगर कुछ सामने रखा है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट में जाने का मकसद। हमें ये चेंज करना होगा, हमें इस मकसद को कॉमन बनाना होगा। हमें ये तय करना पड़ेगा कि मिडिल तक हमारे मदरसे के बच्चे और स्कूल के बच्चे दोनों इस तरह की तालीम हासिल करें। दोनों का मैदान अलग होगा, दोनों के इदारे अलग होंगे, दोनों के मीडियम अलग होंगे, लेकिन मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है। क्या आज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम या अलग अलग इलाकाई मीडियम नहीं चलते हैं? मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मकसद तालीम से फर्क पड़ता है। अगर मकसद तालीम को तालीम की बुनियादों में शामिल कर लिया जाए तो आगे चलकर दुश्वारी नहीं होती है। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह आगे हम मजीद बात करेंगे। आज हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि हम मकसद तालीम को, ऊपर जाकर जो हमें तालीम हासिल करनी है, उसे तालीम की बुनियादों में हम शामिल करें। इंशाअल्लाह फिर आगे चल करके मकासिद का जो इख्तिलाफ है वो हमारा खत्म हो जाएगा। मकासिद के हासिल करने में जो खलीज है, जो दीवार है, वो हमारी खत्म हो जाएगी और हम फिर तालीम के मैदान में एक कामयाब उम्मत होने का सबूत फराहम करेंगे। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।